बॉलीवुड की फ़िल्मों के बारे में क्रिटिक्स ये बोलते आए हैं कि ये फ़िल्में एस्केपिस्ट होती हैं। यानी कि एक दर्शक को एक सेपरेट रियलिटी के अंदर लेके जाती हैं। लेकिन दर्शक जो है वो दुःख का अनुभव कर रहा है और अगर वो एक फ़िल्म के द्वारा आनंद का अनुभव कर सकता है, ढाई 3 घंटे के लिए, तो उसको इस सुख से क्यों वंचित रखा जाए? और ये सुख देने में कामयाब हो रही है कॉकटेल 2। निर्माता दिनेश विजन और उनकी प्रोडक्शन कंपनी मैडॉक फिल्म्स आज एक अल्टरनेटिव बॉलीवुड स्टैब्लिशमेंट की बहुत बड़ी पिलर बन चुके हैं और इन्होंने अपनी शुरुआती दौर में एक फिल्म बनाई थी कॉकटेल। सैफ अली खान, डायना पेंटी और दीपिका पादुकोण को लेके जो 2012 में रिलीज हुई थी और उस समय बहुत हिट हुई थी। तो इतने समय के बाद में इन्होंने दोबारा से इस फिल्म को प्रस्तुत किया है कॉकटेल 2 के रूप में और लेकर आए हैं शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना को, जो कि आज के बहुत लोकप्रिय चेहरे हैं। इस फिल्म के बारे में जो राय निकल के आई हैं क्रिटिक्स की वो काफ़ी मिक्स्ड हैं और वो अलग-अलग रूप से अपनी-अपनी बातें कर रहे हैं और पूरी तरीके से इस फिल्म के समर्थन में आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। और काफ़ी सारों का तो ये मत है कि जो कॉकटेल ओरिजिनल थी, उसके सामने ये कहीं खड़ी नहीं होती। लेकिन इन सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि 2012 और आज 2026, 14 साल में ना एक नई जनरेशन आ चुकी है ऑडियंस की, जिन्होंने अपने बचपन में देखी हो, भूल-भाल गए हों या दोबारा भी देख ली हो, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑडियंस है, दैट्स अ न्यू जनरेशन ऑल टुगेदर एंड शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना एंड कृति सैनन are very attractive and popular faces of today. So this film undoubtedly has a very powerful star cast for the subject it is presenting to the audience. होमी अडजानिया को दोबारा से डायरेक्टर लिया गया है, लेकिन इस बार कहानी और स्क्रीन प्ले लव रंजन, जो इस फिल्म के सह निर्माता भी हैं, उन्होंने लिखी है। लेकिन होमी अडजानिया को जो भी स्टोरी और स्क्रीन प्ले मिला, उसको उन्होंने अपने स्टाइल में इतनी बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है कि अगर आपका उद्देश्य एक फिल्म में जाकर केवल मनोरंजन प्राप्त करना है एंड टू हैव अ गुड टाइम इन द मल्टीप्लेक्स बाय watching a film, so there could be no better alternative than this picture. At least that's what I felt while watching this film. And there are a lot of points, the reasons that have been given for the actions. First of all, Shahid Kapoor and Rashmika Mandana are in a live-in relationship for a very, very long time, since college days. And it is understandable and it is also socially and legally acceptable today that a young couple has a live-in relationship, but it is considered to be a precursor or the forerunner of the marriage. So after some time, when the live-in relationship has gone on, it should culminate in marriage, and similar situation is arising in this couple's life whenever they go to any social function or marriage
all the aunties and everybody else starts asking them कि तुम कब शादी कर रहे हो? And frankly speaking, the film is unable to present a believable excuse for that. So the hero postpones the marriage for no reason whatsoever, and tells the heroine कि जो पैसा हम शादी में खर्चते, let's go for a holiday and I'll take you for a lovely holiday, and it takes her to Sicily, which is the backdrop of the film for majority of the portion of the film in the first half. So you have a lovely backdrop, and there Kriti Sanon enters like a tsunami into the film, and she is looked very hot. She is dressed up in very abridged clothes, and she has carried them very well, looking classy. And the backdrop of the film is so picturesque and full of life. And the music of the film is also, after a long time, you have a romantic film or a Bollywood film which has music like a Bollywood film. And then on top of that, you have a hero like Shahid Kapoor, who's an excellent dancer, and he does such moves, which are unimaginable. Does them so comfortably and looks so eye pleasing, and the heroines also. So, this whole experience of this film becomes like a holiday which the hero has taken the heroine for. There is another twist there which जो काफ़ी लोगों को लगेगा कि फार फेच्ड है, लेकिन रश्मिका मंदाना और कृति सैनन ये ओल्ड फ्रेंड्स निकलती हैं, और वो बोलती है कृति को कि तू मेरे बॉयफ्रेंड पे लाइन मार, ताकि मुझे पता हो जाए, मैं कन्विंस हो जाऊं कि वो वाकई में मुझसे प्यार करता है. No girlfriend or a wife would do a thing like that, but that's the liberty the film is taking, and you have to accept this. And once you accept this, then the film takes you on a very enjoyable ride, and that is the success of the film. And finally, the film is able to culminate on a serious and a dramatic note. And therefore, while watching the film on Saturday, I felt that this film will be a successful film. Now we are recording this on Monday so that we have the 3 days collection with us. So the film net collection day one, Friday, is 13.50, 13.5 करोड़ की नेट कलेक्शन इस फिल्म ने की अपने पहले दिन, और दूसरे दिन इसने करी है 16.25 करोड़, 16.25. एंड यस्टरडे संडे को वो बढ़ के हो गया है 17.18 करोड़, 17.75. So we can very well see that there has been a growth, and that is only possible if the audience has felt happy with the film, because the Friday opening was okay. जो 13.5 करोड़ की ओपनिंग है वो ओके है, 20 की हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था. बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं, लेकिन इसका मतलब है कि ल्यूक वॉर्म ओपनिंग हुई, लेकिन उसके बाद में उसने जंप मारा, यानी कि उसकी अप्रिसिएशन हुई, और संडे को और ज़्यादा अप्रिसिएशन हुई, और अब तक ये 3 दिनों की जो कलेक्शन है ये 47.5 करोड़, 47.50 के करीब पहुंच चुकी है संडे की मिला के. तो ऐसा लगता है कि ये पिक्चर हैज़ हिट द बुल्स आई, और ऑडियंस को पसंद आ रही है. जो ऑडियंस
कि जो नर्व है उसको इसने टच किया है, एंड प्योरली ऑन अ एंटरटेनमेंट लेवल। लॉजिकली देखा जाए तो बहुत सारी कमियां निकाली जा सकती हैं कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, और ऐसा क्यों था, वैसा क्यों था। तो जो प्लॉट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर आर्ग्यूमेंट हो सकती है, लेकिन वो होने के बाद जो स्क्रीन प्ले चलता है, चाहे वो फर्स्ट हाफ का हो चाहे वो सेकंड हाफ का हो, वो बहुत ही आराम से फ्लो करता है, बहुत एन्जॉयबली तरीके से फ्लो करता है। एंड आई थिंक दिस पिक्चर should very easily cross 100 crore collection and should settle down, anywhere between 1.5 to 1.75 lifetime business.